friends, hi, how are you? I'm Kar from Learn English with Kar, and today I'm gonna share with you that how I learned English without even spending a single penny. Okay, so today I'm gonna share my journey with all of you guys. Yes, guys, and those persons who can't afford online or offline classes, they must watch my video because it's gonna be really helpful for them because I didn't spend a single penny for learning English. So if I can, so why you can't? Yes guys, अगर मैं बिना एक penny spend किए है इंग्लिश सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी सीख सकते हो। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। Okay guys, so let's get started our video. And if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel and like my video if you are enjoying my video. So guys, I didn't join any classes. So how I learned this language? I learned this language at my home and alone. Okay guys? So let me share with you that how I learned this language. Actually, once upon a time, I was just watching one video on YouTube, okay? And I was listening to some individuals who were speaking in English in a very good way. And at that time, I was just feeling that I should also learn this language. Actually, that video was putting impact on me. So at that time, I just decided that I should also learn this language and I will learn this language. Like, I was just thinking in my mind. So there was a kind of main desire that was burning in my mind, and also so I got a burning desire like I should learn this language, I would have to learn this language. Then I decided and I wrote it down on a paper, okay, that I would learn this language. I don't know how, whatever way I have to do, I would learn this language. So that was a kind of desire for me at that time, okay. So I started to learn this language. But how I started to learn this language? So initially I came to know about Cambly, okay. Like, there was an application where we can talk to individuals, but we have to pay over there. Like, हमें वहाँ पर जाकर पे करना पड़ता है लोगों से इंग्लिश में बात करने के लिए। लाइक वो टीचर्स होते हैं, ओके, उनको उनकी इंग्लिश बोलने की स्पीड, उनकी फ्लुएंसी, उनका इंग्लिश बोलने का ढंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट व्हेन आई वेंट ऑन दैट एप्लीकेशन एंड आई सॉ द रेट, लाइक जब मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और मैंने रेट देखा वहाँ पर जाके, मतलब कितना पे करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। दैट वॉज exorbitantly एक्सपेंसिव फॉर मी। exorbitantly एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे, मेरे लिए। हाँ, किसी के लिए हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो देन आई टर्न डाउन माई प्लान, लाइक मैंने कैंसिल कर दिया मेरे प्लान को। I just cancelled my plan that I could not afford this. Then I started to think that I could learn this language alone at my home with the help of YouTube, with the help of Google. So I started to learn this language. Guys, एक मैंने वीडियो देखी, उसमें दो मतलब औरतें थी, दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रही थी. They were having a conversation with each other, okay? And at that time I just think that if they are speaking English, why I can't? And from that day I started having a conversation with myself in front of the mirror, okay? और ये in front of the mirror वाली बात भी, ये भी मैंने एक वीडियो देखी थी कि इंग्लिश को कैसे हम सीख सकते हैं घर पे, वो भी अकेले रहकर। तो मैंने वही तरीका अपनाया, ओके। मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। I was not getting full response from myself, okay? I was practicing, but मैं पूरा रिस्पॉन्स नहीं गेट कर पा रही थी अपनी सेल्फ से। क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी इंग्लिश में, कि किस चीज़ को कैसे बोलना है, कौन सा सेंटेंस किस जगह पे यूज़ करना है, कौन सी फ्रेज़ किस जगह पे यूज़ करनी है। बस मैं कुछ टॉपिक्स उठा लेती थी, कोई भी टॉपिक, जैसे कि मुझे ज़्यादातर तो मुझे 3-4 टॉपिक ही पता थे कि एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स और
नेचर और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन। ओके, ये काफ़ी टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर मतलब बच्चे पहले सीखना शुरू करते हैं, तो इनके रिगार्डिंग ही मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। मैं खुद से क्वेश्चन पूछने लगी, खुद को ही आंसर करने लगी। और सबसे पहली बात मैंने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन। अभी सभी को पहले तो इंट्रोडक्शन ही सीखनी पड़ती है इंग्लिश में, बट जो स्कूल में सीखी थी बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन लाइक अ प्रो कहते हैं ना, कि बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन देना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लाइक अ प्रो। तो मैंने वो भी वीडियो देखी और वही इंट्रोडक्शन मैंने सीधा कॉपी कर दी, और वैसे ही इंट्रोडक्शन मैंने मिरर के सामने खड़े होकर बोल दी। ओके, तो उसके बाद मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि व्हाट आर योर हॉबीज़। तो मैंने अपनी हॉबीज़ भी बता दी कि आई लाइक टू रीड बुक्स, लाइक दे शुड बी रिलेटेड टू स्टोरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक टू डू क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग भी मेरा एक शौक है, वो भी मेरी हॉबी है जो कि मैं फ्री टाइम में करती हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे करके खुद की सेल्फ को आंसर्स देना शुरू किया, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब मैं खुद की सेल्फ से ही अच्छा रिस्पॉन्स गेट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो मुझे फेस करनी पड़ रही थी। पहली बात तो ये है कि मुझे टॉपिक्स नहीं पता चल रहे थे कि कौन सा टॉपिक कैसे लर्न करना है, उसके रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं पता चल रहे थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पता चल रहे थे। क्योंकि उसी टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब मैंने कैम्ब्ली को देखा तो उसका तो मैंने प्लान ड्रॉप आउट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। ओके, मैं उस कैम्ब्ली एप्लीकेशन को लेस रेटिंग नहीं देना चाहती, कोई गलत रेटिंग नहीं देना चाहती, बट हाँ मेरे लिए एक्सपेंसिव था तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाई। हाँ, दूसरे लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो करेंगे तो। Okay, guys, then I started to think that if I couldn't join online classes, so I could join offline classes. But there was also one problem in my village. There is not any kind of coaching classes. Like villages में ऐसा ही होता है कि कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं है ज़्यादातर इंग्लिश की। तो I cancelled my plan again. ओके, मैंने अगेन अपना प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी कोचिंग नहीं थी जहाँ पर जाके हम खुद से इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं ऑफलाइन। थी एक था, शहर है हमारे यहाँ पे, बट वो 2 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटे डेली अप डाउन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल। ओके, और विलेजेस में ऐसा होता है कि इतने टाइम हम घर से बाहर नहीं रह सकते, और अकेले तो इतना दूर जा ही नहीं सकते। तो आई हैड टू ड्रॉप आउट माई प्लान। तो मैंने अपना वो भी प्लान कैंसिल कर दिया। ओके, देन आई जस्ट थिंक दैट अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती, ऑफलाइन भी नहीं ले सकती, तो मैं इंग्लिश सीखूँ कैसे? तो उस टाइम पे मैंने क्या कराया पता आपको? सो आई took one paper, okay, and I note down some lines. Okay, I write down some lines. और वो lines क्या थी? That I have to learn this language. I would learn this language. I don't know how. I don't know what type of vows I have to commit or I have to do. मतलब मैंने क्या लिखा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे भी करके सीखनी है, कोई भी वे हो मुझे उस वे से सीखनी है। मुझे नहीं पता कैसे कस्में और वादे मुझे खुद से करने पड़ेंगे उस इंग्लिश को सीखने के लिए, बट मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो मेरे अंदर एक डिज़ायर बर्न हो रही थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। जब मैंने उस पेपर पर लिखा तो मेरे अंदर एक मतलब ऐसी जो कहते हैं कि शक्ति आ गई कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। तो मैंने उसी चीज़ को अपने अंदर फील किया कि हाँ अब मुझे सीखनी ही सीखनी है। और सेकंड थिंग ये भी थी कि आजकल ना जॉब्स मिल रही हैं, बट अगर हमको इंग्लिश आती है तब इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, उसके आगे कोई भी काम करना है वो भी इंग्लिश में, कुछ पढ़ना है वो भी इंग्लिश में, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश को ही प्रेफर किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैंने सोच ही लिया, मैंने ठान लिया कि इंग्लिश अब मुझे लर्न करनी ही करनी है। और तीसरी चीज़ ये हुई कि जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए तो कॉलेज में जो भी डिग्रीज़ थी या कोर्सेज थे सभी इंग्लिश में थे। हाँ, कुछ पंजाबी में थे, बट आई डिडंट लाइक टू प्रेफर देम। मुझे वो अच्छे नहीं लगे तो मैंने उनको प्रेफर नहीं किया, मैं उनको सीखना नहीं चाहती थी, बट जो मैं सीखना चाहती थी वो सभी इंग्लिश में थे। ओके,
एंड ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, अगर मुझे इंग्लिश आती थी, बट कहते हैं ना कि ग्रामर के रूल्स नहीं अच्छे से याद थे, उनको यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता था, मॉडल्स का अच्छे से यूज़ नहीं पता था कि कैसे करना है। बस 12th तक जैसे इंग्लिश टीचर्स पढ़ाते थे वैसे पढ़ते गए और पास होते गए। Okay, so this is the kind of my journey, that how I started to learn this language. Okay, then what I did, okay, जब मैंने नोट डाउन कर लिया एग्जाम पेपर पे, तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इधर उधर सर्च करना शुरू कर दिया। ओके, मैंने यूट्यूब पर सर्च करा दैट हाउ कुड आई लर्न दिस लैंग्वेज, हाउ कुड आई लर्न इंग्लिश इन बाय step, okay, in good ways, in by good techniques or by good methods. Okay, तो मैंने ये सब चीज़ें सर्च करी गूगल पर और यूट्यूब पर, तो आई गॉट अ न्यूमरस वेज, आई गेट टू नो अबाउट न्यूमरस वेज। ओके, मुझे बहुत सारे वेज पता चले, न्यूमरस मतलब मैनी, बहुत सारे वेज पता चले इंग्लिश लर्न करने के। क्या कुछ लोगों ने कहा यू शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कुछ लोगों ने कहा यू शुड टॉक टू योरसेल्फ, कुछ लोगों ने कहा यू शुड टॉक टू ऑब्जेक्ट्स, कुछ लोगों ने कहा यू शुड हैव वन पार्टनर टू स्पीक इंग्लिश, कुछ लोगों ने कहा कि यू शुड हैव कॉन्वर्सेशन विद अदर्स हु नो इंग्लिश वेरी वेल, हु कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ऐसे सभी चीज़ें मैंने पता करी और मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला जब मैंने सर्च करी। ओके, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और उस वीडियो में बताया जा रहा था कि हम इंग्लिश को घर पर ही लर्न कर सकते हैं, दैट वी कुड लर्न दिस लैंग्वेज अलोन एट होम, बट वी शुड हैव डिज़ायर, we should have some patience, because if we want to learn anything, so we have to uh, put our efforts. Okay, तो efforts तो put करने ही पड़ते हैं कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए। तो मैंने एक डिज़ायर अपने अंदर बना ली कि मुझे लर्न करनी ही करनी है। तो उसके बाद मैंने मिरर प्रैक्टिसिंग शुरू की देन, और मुझे एक चीज़ पता चली, मतलब यूट्यूब के सहारे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी, सॉरी टेंसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी, तो मैंने टेंसेस भी लर्न कर लिए। टेंसेस कहाँ से लर्न करे मैंने, टेंसेस लर्न करे मैंने डियर सर की एक वीडियो से, वो भी 2 घंटे की वीडियो थी और वो वीडियो मैंने 1 महीने में पूरी करी। ओके, आई कम्प्लीटेड दैट वीडियो इन 1 month. ओके, बट आई लर्नड all the tenses in a very good way from that video. Okay, तो उस वीडियो से मैंने सारे टेंसेस लर्न कर लिए और मैं आज तक उस वीडियो का एक एक चीज़ जानती हूँ कि कैसे डियर सर ने हर एक टेंस को अच्छे से बताया है। और 1 to लेके 12 तक, मतलब पहली से लेके 12वीं तक मैंने ऐसे किसी को भी टेंसेस सिखाते नहीं देखा जैसे डियर सर ने टेंसेस सिखाए, और वो मुझे आज तक याद है। मुझे दोबारा कोई भी टेंसेस की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो मुझे याद है और उसी वीडियो की वजह से मैं आज इंग्लिश बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि टेंसेस का बहुत रोल है हमारी इंग्लिश में। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह पे हमें लॉन्ग सेंटेंसेस ही बोलने हैं, बट हाँ सेंटेंसेस बोलने हैं तो टेंसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश के लिए। ओके, देन गाइज आई स्टार्टेड टू टॉक टू ऑब्जेक्ट्स। लाइक मैंने ना क्या करा कि मैंने, हमारे घर में एक पेड़ है, आई लाइक टू टॉक टू दैट ट्री। ओके, लाइक मैं उससे बातें करती हूँ इंग्लिश में। डोंट थिंक दैट आई lost my mind, I get mad. No, I'm not mad, but I like to talk to them, because whenever I want to talk to someone, they just think that she is just showing off her English. Okay, तो इसीलिए I like to talk to objects. like मैं अभी इसमें इससे बात कर सकती हूँ, hey hi table, hi how are you, then he will answer me I'm good, how about you, तो मैं भी कहूँगी I'm pretty good, then और आगे कॉन्वर्सेशन चलेगी दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन हैव। सो ये बताएगा मुझे कि आई एम मेड बाय द वुड एंड यू कैन put some things on me, like you could put on your books on me, like तुम अपनी बुक्स मेरे ऊपर रख सकती हो, and so many things. Okay guys, actually I'm a little bit nervous, so please ignore it guys, because I just wanna share my journey, that how I learned this language. I'm not perfect, I'm not fluent speaker in English, but
I could speak English in a good way. I'm not what type of mistakes I'm making these days. If you are getting to know about my mistakes, you could comment me in the comment box and I'll try to correct them. Okay, I'll try to I'll try to do self correction. Okay, तो मैं खुद को करेक्ट करने की कोशिश करूँगी. ओके गाइस, सो पहली बात ये है कि मैंने उस चीज़ को नोट डाउन कर लिया, और सेकेंडली कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा कुछ लर्न करा, बहुत सारी वीडियोस सुनी. देन आई स्टार्टेड टू गेट नो अबाउट दैट वी कुड लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग कार्टून वीडियोज़. ओके, बाय वॉचिंग कार्टून वीडियोज़. तो मैंने कार्टून वीडियोज़ को भी वॉच करना शुरू कर दिया, और सबसे बेस्ट चैनल है निक जूनियर. उस चैनल की वजह से मैं बहुत अच्छी इंग्लिश लर्न कर पा रही हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड टू रिपीट विद द सबटाइटल्स. लाइक जो भी सबटाइटल्स आते थे इस वीडियो में, तो मैं सबटाइटल्स को रिपीट करने की कोशिश रिपीट करती थी. ओके, पहली बार डिफ़िकल्ट लगता था. फर्स्टली इनिशियली दैट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, बट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड टू डू दैट. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो गई. अचानक से इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई. वो क्यों? क्योंकि मेरे वोकल सेक्शन पर वर्क होने लगा. वोकल सेक्शन पर वर्क कैसे होने लगा? क्योंकि मैं सबटाइटल्स को रीड करने लगी थी, मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लगी थी. तो वोकल सेक्शन पर वर्क होने लगा. मुझे मेरी वोकल को पता चलने लगा कि कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है और कैसे अच्छे से प्रोनाउंस करना है. तो वो भी मेरे वोकल सेक्शन पर वर्क हो गया. और तीसरी चीज़ ये होगी, जो भी मैं टॉपिक प्रिपेयर करती थी अपने डेली बेसिस पर, तो उससे क्या हुआ कि मेरे माइंड की जो सोचने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई. ओके, और टेंसेस को लर्न करा, मॉडल्स को लर्न करा. ऐसे ऐसे करके आप इंग्लिश को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो. डोंट थिंक दैट यू couldn't learn this language. You could learn this language, but you have to put your efforts. And if you guys wanna part 2 of this video, because मैंने अभी पूरे अपने, जैसे कहते हैं कि पूरे स्टेप्स आपके साथ शेयर नहीं करे हैं. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आई हैव टू क्लोज दिस वीडियो राइट नाउ. तो अभी मैं इस वीडियो को बंद करने जा रही हूँ. बट इफ़ यू गाइज आर enjoying my video, if you enjoy my video, so please guys click on the like button and please subscribe my channel for learning more. Thank you.